سابق صدر پرویز مشرف طویل علالت کے بعد انتقال کر گئے۔ سابق آرمی چیف دبئی کے اسپتال میں زیر علاج تھے۔ اہل خانہ کی جانب سے میت پاکستان لانے کے لیے کونسل خانے کو درخواست۔ خصوصی طیارہ آج روانہ ہوگا۔ تدفین کراچی میں کی جائے گی۔ میت کی منتقلی کے لیے سہولت فراہم کر رہے ہیں دفتر خارجہ کا اعلامیہ۔ پرویز مشرف 1964 میں 29ویں پی ایم اے لانگ کورس سے فارغ التحصیل ایس ایس جی کا حصہ رہے۔ 1965 اور 1971 کی پاک بھارت جنگ میں بھی شرکت کی۔ سابق آرمی چیف 2001 سے 2008 تک صدر پاکستان کے عہدے پر براجمان رہے۔ صدر مملکت کا جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کے انتقال پر اظہار افسوس۔ عارف الوی کی جانب سے ورثہ کے لیے صبر جمیل کی دعا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بھی مرحوم کے لواحقین سے تعزیت کا اظہار۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، نواز شریف کا ٹویٹ۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور مسلح افواج کے سربراہان کا جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کے انتقال پر اظہار افسوس۔ درجات کی بلندی کے لیے دعا۔ اللہ تعالیٰ پرویز مشرف کے اہل خانہ کو صدمہ برداشت کرنے کی توفیق دے۔ ISPR۔ ملک اور فوج کے لیے پرویز مشرف کی خدمات ناقابل فراموش۔ ان کے دور میں کئی ترقیاتی منصوبے تکمیل کو پہنچے۔ چودھری پرویز طاہی کا خراج عقیدت۔ سابق صدر کو دلیرانہ فیصلوں کی وجہ سے یاد رکھا جائے گا۔ انہوں نے ہمیشہ ملک کے لیے سوچا، اختلاف رائے کا احترام بھی کیا۔ چودھری شجاعت کا اظہار افسوس۔ اٹوٹ رشتوں اور لازوال محبتوں کی تجدید کا دن۔ قوم کا ظلم و بربریت کا سامنا کرتے نہتے کشمیریوں سے اظہار یکجہتی۔ کوہالہ پل اور دیگر مقامات پر انسانی ہاتھوں کی زنجیر۔ 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ شرکاء کی جانب سے جدوجہد آزادی کے لیے قربانیاں دیتے عوام کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا عزم۔ سیاسی، اخلاقی اور سفارتی حمایت کا اعادہ۔ عالمی برادری سے وادی جنت نظیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر نوٹس لینے کا مطالبہ۔ کشمیر کی وادی میں 75 سال ہو گئے۔ کشمیر کی وادی نہتے بے گناہ مسلمانوں کے خون سے سرخ ہو گئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ظلم زیادہ دیر نہیں چل سکے گا۔ ہمارے معاشرے میں تقسیم در تقسیم پیدا ہو چکی ہے، جو کہ یقیناً افسوسناک ہے۔ مقبوضہ وادی بے گناہ کشمیریوں کے خون سے سرخ، لاکھوں افراد جان کی قربانی دے چکے۔ بھارتی بربریت زیادہ دیر نہیں چل سکتی۔ معاملے پر تمام جماعتوں کا اتحاد ہندوستان کے لیے پریشان کن۔ جدوجہد آزادی کی حمایت جاری رہے گی۔ وزیر اعظم کا آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی سے خطاب۔ شہباز شریف کا کشمیر پالیسی میں مزید جدت اور قوت پیدا کرنے پر زور۔ کیا قصور ہے کشمیر کا؟ ایسٹ تیمور میں، سوڈان میں، دنیا کی کون سی جگہ پر ریفرنڈم نہیں ہوا؟ نہیں ہوگا تو کشمیر میں نہیں ہوگا۔ بنیادی طور پہ یہ جو سیکورٹی کونسل کے 5 مستقل ممبر ممالک ہیں، ان کی ذمہ داریاں ہیں۔ ہمیں اپنے گروپ، اپنی لابنگ کے اندر ہمیں اضافہ کرنا ہوگا۔ پاکستان نے ہر فورم پر کشمیر کا مقدمہ مؤثر انداز میں لڑا۔ بھارتی مظالم کو بھی پوری دنیا کے سامنے بے نقاب کیا۔ دنیا بھر میں ریفرنڈم ہوتے ہیں، لیکن مقبوضہ کشمیر میں ایسا نہیں ہونے دیا جاتا۔ انڈین ہٹ دھرمی برقرار تنازع کا حل اقوام متحدہ کے 5 مستقل ارکان کی ذمہ داری ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس کا قانون ساز اسمبلی سے خطاب۔ لندن میں کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی مہم۔ شہر کی سڑکوں پر ڈیجیٹل ایڈ وین رواں دواں۔ ڈیجیٹل مہم کا اہتمام برطانیہ میں مقیم کشمیری کمیونٹی نے کیا۔ فرانس کے دارالحکومت پیرس کی فضا بھی آزادی کشمیر کے نعروں سے گونج اٹھی۔ یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے یورپ کی سب سے بڑی ریلی نکالی گئی۔ کشمیریوں کے حق میں اور بھارت کے خلاف سخت نعرے بازی۔
स्पेन में भी कश्मीरी अवाम से यकजहती का इजहार। EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम बार्सिलोना में कार रैली। गाड़ियों पर पाकिस्तानी और कश्मीरी परचमों की बहार। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारों की गूंज। वज़ीर ख़ारिजा अमरीका का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गए। बिलावल भुट्टो निजी एयरलाइन की परवाज से बरास्ता दुबई कराची पहुंचे। बिलावल भुट्टो ने अमरीका में अहम शख्सियात से मुलाकातें की। वज़ीर ख़ारिजा रूस से अमरीका रवाना हुए थे। बुज़दिलों की तरह घर में छुपा शख्स जेल भरो तहरीक की बातें कर रहा है। जेलें भरनी है तो कारकुनों को ढाल मत बनाओ, जमानतें मनसूख कराओ, फिर मैदान में आओ। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने कोई इंतकाम नहीं लिया। दूसरों को रुलाने के दावेदार 2 घंटे की गिरफ्तारी पर ही रो पड़े। इनकी शक्लें देखकर अपने कायद पर फख्र महसूस होता है। अपने घर की मईशत ठीक करने वालों ने मुल्क बर्बाद कर दिया। नून लीग कौम को मुश्किलात से निकालेगी। मरियम नवाज का मुल्तान में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। ये कह रहा है कि मैंने जेल भरो तहरीक शुरू करनी है। बेटा तुम जेल भरो तहरीक शुरू करो, तुम्हारा इलाज मैं करूंगा। इंशाअल्लाह ताला तुम्हें उन्हीं सेलों में रखेंगे जहां पे तुमने हमें रखा था, और तुम्हें हम अपनी तरह जो है कोई सख्ती नहीं करेंगे। हर चीज मुहैया करेंगे, खाने की पीने की, लेकिन एक चीज मुहैया नहीं करेंगे, उसके बगैर तुम्हें गुजारा करना होगा। इमरान खान जेल भरो तहरीक शुरू करो, तुम्हारा इलाज मैं करूंगा। तुम्हें उसी सेल में रखेंगे जहां हमें रखा गया था। राना सनाउल्लाह की ललकार। एक शख्स की हठधर्मी और नालायकी ने मुल्क बर्बाद कर दिया। कौम मौजूदा सूरत हाल तक क्यों पहुंची, ये जानने की जरूरत है। नवाज शरीफ ने मरियम नवाज को पार्टी मजबूत बनाने का टास्क सौंप दिया। हम तैयार हैं, इलेक्शन भी लड़ेंगे, पंजाब में हुकूमत भी बनाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला का मुल्तान में खिताब। मुल्तान के लोगों को क्या सुनाने आई हैं कि पिछले हफ्ते 35 रुपए पेट्रोल, 35 रुपए डीजल, 18 रुपए मिट्टी के तेल की कीमत बढ़ी। क्या आप मुल्तान के लोगों को ये खुशखबरी देने आई हैं कि गैस जो इस वक्त दस्तयाब नहीं है और चूल्हे ठंडे हैं, उसका रेट मजीद बढ़ने वाला है? जो सर्जरी पाकिस्तान की मईशत की हो गई, उसका जिक्र करेंगी या नहीं करेंगी? क्या मरियम नवाज मुल्तान वालों को ये बताने आई कि आटा और पेट्रोल महंगा, बिजली और गैस नायाब हो गई? नून लीगी रहनुमा गुजरे 9 माह के दौरान होने वाली मुआशी सर्जरी का जिक्र क्यों नहीं करती? लोग लाइनों में लगकर धक्के खा रहे हैं। हुक्मरानों को इंतकामी कार्रवाइयों से फुर्सत नहीं, डरने वाले नहीं। इरादा है तो बेशक मुझे हथकड़ी लगा लें। शाह महमूद कुरैशी की मीडिया टॉक। राना सनाउल्लाह में और हिंदुस्तान के वजीर दाखिला में क्या फर्क है? जब ये गोलियां मारने का फख्र से जिक्र करता है तो यही काम तो हिंदुस्तान में हो रहा है। डरो उस वक्त से जब पाकिस्तान के लोग लाखों की तादाद में सड़कों के ऊपर होंगे और तुम्हें जहाज भागने के लिए नहीं मिलेगा। जब इमरान खान कॉल देगा, जेल में सबसे पहली गिरफ्तारी मैं दूंगा। पाकिस्तान पर पीटीएम, कश्मीर पर भारत काबिज। राना सनाउल्लाह और भारतीय वज़ीर दाखिला में क्या फ़र्क है? ये उस वक्त से डरें जब लाखों अफराद सड़कों पर होंगे। वक्त बदलते देर नहीं लगती, फिर उन्हें भागने के लिए जहाज भी नहीं मिलेगा। 9 माह से आईने पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ जारी। मरहम रखने के वक्त लोगों के जख्मों पर नमक छिड़का जा रहा है। फवाद चौधरी का दीना में खिताब। इमरान खान जब कहेंगे जेलें भर देंगे, पहले हम गिरफ्तारियां देंगे, फिर अवाम आगे आएंगे। रजीम चेंज के बाद हालात इंतहाई संगीन। पाकिस्तान का सियासी और मुआशी ढांचा तबाह हो चुका। इंपोर्टेड हुकूमत की IMF के साथ डील आम आदमी का डेथ वारंट साबित होगी। फरूख हबीब की मीडिया टॉक। जिससे दस्तबरदार हुए थे, अब उसके लिए 10 तो गिरेबान होना है। एक हफ्ते के लिए पाकिस्तान पीपुल्स
पीपुल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत को अल्टीमेटम दे रहे हैं। अगले हफ्ते आज के दिन ही इस वक्त पूरा कराची शहर की सारी सड़कें धरने के जानिब रवादवा होंगी। बहादुराबाद ऑफिस अगले इतवार की शब फव्वारा चौक पे हम शिफ्ट कर देंगे। धरना भी ऐसा होगा कि सब धरा का धरा रह जाए। MQM का 12 फरवरी को कराची में फव्वारा चौक पर धरने का ऐलान। बल्दियाती इलेक्शन से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए सिंध हुकूमत को एक हफ्ते का अल्टीमेटम। अब कराची वाले ही शहर की किस्मत का फैसला करेंगे। धरना ऐसा होगा कि सब धरा रह जाएगा। पहले ही वाज़े किया था कि छीनी गई सीटें वापस लेंगे। अब दूसरा इलेक्शन लड़ना है। लोग अपना हक लेने के लिए घरों से निकलें। खालिद मकबूल सिद्दीकी का जनरल वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। निगरान वज़ीर आला पंजाब से इतालवी तरक्याती ताउन के इदारे के वफ़द की मुलाकात। ज़राअत, वोकेशनल ट्रेनिंग और दीगर शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। माहौलियाती आलूदगी और स्मॉग से निमटने की हिकमत अमली पर भी बातचीत। मुख्तलिफ शोबों में इटली की तकनीकी सपोर्ट का खैर मकदम करेंगे। मोहसिन नकवी एजुकेशन सेक्टर को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए पुराज़्म। मोज़ी मरज़ के खात्मे का मिशन। पंजाब के 13 अजला में इंसदाद पोलियो मुहिम 13 फरवरी से शुरू होगी। 16 फरवरी तक 2 करोड़ 20 लाख बच्चों को कतरे पिलाने का मिशन। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की मॉनिटरिंग का फुल प्रूफ निज़ाम वज़ा करने और 100% अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। लाहौर में गुलशन रावी, चौबुर्जी, मजंग, मॉल रोड और लक्ष्मी चौक समेत मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश के साथ ज़ालाबारी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। आज दिन भर वक्फे से बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात की पेशगोई। मरी में हल्की बर्फबारी, नज़ारे सफ़ेद, मौसम हसीन। अगले 24 घंटे के दौरान मलिका कौसार और गिरदनवाह में रिम झिम की तवक्को। दर्जाए हरारत -1 तक गिरने का इम्कान। ऑस्ट्रेलिया के इनकार के बाद पाकिस्तान अफगान क्रिकेट की मदद को पहुंच गया। PCB का पड़ोसी मुल्क के साथ 3 T20 मैच खेलने का ऐलान। दोनों टीमें मार्च के आखिर में शारजा में मद्दे मुकाबिल होंगी। नजम सेठी का ट्वीट।